एवरीवन, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे ये हमारा स्टेट बोर्ड जो है केरला का, वहाँ की हमारी बुक है। ठीक है, तमिल जैसे हम तमिलनाडु बोर्ड की एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, वैसी एंथ्रोपोलॉजी की बुक है। तो सबसे पहले उनके लिए जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी है, तो हमें एंथ्रोपोलॉजी देखिए पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने बेसिक को मजबूत करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कंटेंट है। पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, फिर हम पढ़ेंगे इटाइमोलॉजी एंड definition, biosocial nature, comparative, integrative and holistic nature, anthropology as a field science. Okay, एंड आफ्टर दैट मेजर ब्रांचेस क्या हैं एंथ्रोपोलॉजी के, वो पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, रेलिवेंस क्या है एंथ्रोपोलॉजी की, करियर अपॉर्चुनिटीज, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन, एंथ्रोपोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल साइंस, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में हमारा आ जाता है ह्यूमन क्यूरियोसिटी and origin and development of anthropology, growth and development of Indian anthropology, right? Okay, so on the way to Pretoria, this is the picture of Mohandas Karamchand Gandhi. The train reached Maritzburg, the capital of Natal, at about 9 p.m. Bedding used to provided at this station. Railway servant came and asked me if I wanted one. No, said I have one with me. He went away. But but a passenger came next and looked me up and down. He said that I was a colored man. That this disturbed me. Out he went and came in again with one or two officials. They all kept quiet when another official came to me and said, "Come along, you must go to the van compartment." So, but I have a first class ticket, said I. That does not matter, rejoined the other. I tell you, you must go to the van compartment. I tell you, I was permitted to travel in this compartment, and I insist on going on in it. No, you won't, said the official. You must leave this compartment, or else I shall have to call a police constable to push you out. Yes, you may. I refuse to get out voluntarily. The constable came. He took me by the hand and pushed me out. My luggage was also taken out. I refused to go to the other compartment, and the train steamed away. I went and sat in the waiting room, keeping my handbag with me and leaving the other luggage where it was. The railway authorities had taken charge of it. It was winter, and winter in the higher region of South Africa is severely cold. Maritzburg being at a high altitude, the cold was extremely bitter. My overcoat was in my luggage, but I did not dare to ask for it lest I should be insulted again. So I sat and shivered. There was no light in the room. A passenger came in at about midnight and possibly wanted to talk to me, but I was in no mood to talk. I began to think of my duty. Should I fight for my rights or go back to India, or should I go on the Pretoria without minding the insult and return to India after finishing the case? It would be cowardice to run back to India without fulfilling my obligation. The hardship to which I was subjected was superficial, only a symptom of the deep disease of colored prejudice. I should try, if possible, to root out the disease and suffer hardship in the process. Redress for wrongs I should seek only to the extent that would be necessary for the removal of the color prejudice. So I decided to take the next available train to Pretoria. सो ये जो पिक्चर है, ये जो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने अपना ये इंसिडेंट्स एक डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड ही वाज इन साउथ अफ्रीका। तो वहाँ पे एक जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो आते हैं, और वो उनका जो डार्क कलर है उसको देख के कहते हैं कि आपको दूसरे कंपार्टमेंट में जाना है, राइट। तो गांधी जी यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। दिस वाज वन ऑफ द बिटर एक्सपीरियंस जो महात्मा गांधी ने फेस किया, एक्सपीरियंस किया साउथ अफ्रीका में। इस केस में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्रेविटी कितनी थी कलर डिफरेंस की, जिसकी वजह से वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या था, प्रैक्टिस थी वहाँ पे अनटचेबिलिटी, ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन था दैट वाज प्रिवेलिंग फॉर सेंचुरीज।
So in both these cases, basis of discrimination is the difference between two categories of people, on the basis of color, another on the basis of caste. एक कलर के बेस पे और एक कास्ट के बेस पे. ह्यूमन लाइफ में यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारी स्फीयर्स ऑफ लाइफ में, सम डीप रूटेड एंड अदर्स merely out of habitual formation. Not all differences may lead to such behavioral responses and reactions. It is the differences that bring about diversity in human society. हम encounter करते हैं number of differences हमारी day to day life में. Most often people are not ready to accept and appreciate human diversity. सो हम एक्सपीरियंस करते हैं डाइवर्सिटी को हर एक स्फेयर में ह्यूमन लाइफ के. सिग्निफिकेंट वेरिएशंस है इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ अक्रॉस नेशंस एंड कल्चर. सो हैव यू एक्सपीरियंस और एनकाउंटर एनी काइंड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेरिएशन एट एनी एट एनी टाइम इन योर लाइफ? तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या आपने भी कभी इस तरह का कोई अपने रिलीजन की वजह से, अपनी कास्ट की वजह से, अपने जेंडर की वजह से, या आपकी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, क्या आपने भी कभी ऐसा जो एक्सपीरियंस किया है कि आपके साथ कोई भेदभाव हुआ हो, डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो? तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और हम देखते हैं कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है या कितने लोगों ने ऐसा फील किया है. देखिए, डाइवर्सिटी हम देखते हैं फूड में, शेल्टर में, क्लोथिंग में. जैसे आप देखोगे कि कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेज होते हैं, राइट, नॉन वेजिटेरियन होते हैं. तो यहाँ पे डाइवर्सिटी देखोगे आप. उसके अलावा भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है फूड में. सो एंड क्लोथिंग में भी ऑल्सो, क्लोथिंग भी रीजन टू रीजन जो है एंड रिलीजन टू रिलीजन डिफर करती है. सो हाउ डिड यू रिएक्ट टू और रिस्पॉन्ड टू सच वेरिएशन? बील्स एंड हॉइजर एक एग्जाम्पल देते हैं कुछ तरह के वेरिएशंस के अपनी बुक में, इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजी. जैसे कि पहले एग्जाम्पल है, एस्किमोज ऑफ द आर्कटिक लिव ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अपॉन मीट एंड फिश. जो आर्कटिक रीजन में एस्किमोज रहते हैं वो मीट खाते हैं और फिश खाते हैं. ठीक है. मैक्सिकन इंडियन वो किस पे डिपेंड करते हैं? सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स पे. मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स इज अ लग्जरी अमंग बेगेंडा ऑफ ईस्ट अफ्रीका, बट फॉर द पीपल ऑफ वेस्ट अफ्रीका इट इज लीस्ट रिगार्डेड. लेकिन अगर हम मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें तो लग्जरी की तरह वो काउंट होता है ईस्ट अफ्रीका में. बट अगर वहीं पे हम वेस्ट अफ्रीका की बात करें तो लोग उसको प्रिफर ही नहीं करते. फिश मेन फूड है बहुत सारे अमेरिंडियन ट्राइब्स का, बट द नवाजो एंड द अपाचेस ऑफ न्यू मैक्सिको एंड एरिजोना कंसिडर इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. ठीक है, वो अनफिट इसको कंसिडर करते हैं. मीट ऑफ डॉग इज कंसिडर्ड टू बी वेरी डिलीशियस फॉर मैक्सिकन इंडियंस. डॉग का मीट खाते हैं तो वो उसको बहुत ज़्यादा डिलीशियस कंसिडर करते हैं. दीज आर वेरिएशन इवन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड. जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो कंबाइन नहीं करते मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स को. ठीक है. एस्किमोज भी नहीं कंबाइन करते सी फूड को और मीट को जो लैंड से उनको ऑब्टेन होता है. वेरिएशंस आर इन देयर इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग, टेबल मैनर्स या फिर एटिकेट्स में भी आप वेरिएशन देखेंगे. ठीक है. सिमिलरली भाई आप देखेंगे वेरिएशन कैन बी ऑब्जर्व इन ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स. कुछ ऑस्ट्रेलियन है, अंडमान ट्राइब्स है, वो नेकेड रहना पसंद करते हैं, राइट. So others like the Bayanja of East Africa are fully clothed from neck to ankle. So it is evident that diversity exists करती है ह्यूमन में. फिजिकल अपीयरेंस की टर्म्स में अगर हम बात करें, कल्चरल प्रैक्टिसेस की टर्म्स में बात करें, लैंग्वेजेस के टर्म्स में बात करें या फिर लाइफस्टाइल की. इनफैक्ट इस तरह की डाइवर्सिटी जो है, सच डाइवर्सिटी एड्स टू द ब्यूटी ऑफ आवर सोसाइटी एंड कल्चर. सो एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन अपहोल्ड्स करती है ह्यूमन डाइवर्सिटी को एज इट इज अ रियलिटी विच नीड टू बी अप्रिशिएटेड एंड एक्सेप्टेड. तो देखो, कभी भी अगर आप भी ऐसी डाइवर्सिटी देखें तो उसको एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि भाई डाइवर्सिटी है तो क्यों है, राइट. वी शुड अप्रिशिएट दीज डाइवर्सिटीज बिकॉज ये पॉसिबल है कि नहीं है कि एक ही वर्ड में एक तरह का कल्चर, एक तरह की सोच, लोगों की एक तरह की फूड हैबिट्स. ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल. सो डिफरेंस इज ऑफ द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी. Difference is an accident of birth and it should therefore never be the source of hatred or conflicts. Answer to differences to respect it. Therein lies the most fundamental principle of peace, respect for diversity. ठीक है.
तो अब आता है नेचर एंड कल्चर, एक हॉलिस्टिक इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव फॉर्म करते हैं। इन दिस यूनिट वी विल एग्जामिन द नेचर एंड फीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड रेलिवेंस अलोंग विद इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, राइट। सो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, is interested in studying the biological and cultural uniqueness, cultural uniqueness, variation of the most intelligent people, species on the earth, Homo sapiens sapien. Anthropology as a distinct discipline with biosocial nature provides one with an opportunity to explore human. एंथ्रोपोलॉजी पहला जो इसको वर्ड को कॉइन किया था एरिस्टोटल ने किया था, ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है, ये हमें याद रखना चाहिए। मीनिंग एंड नेचर देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी का। सो आपने स्टडी किया होगा डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ अपनी अर्लियर क्लासेस में। बायोलॉजिकल ओरिजिन है, इवोल्यूशन है, वेरिएशन है, स्टडी हुए थे बायोलॉजी में। कल्चरल वेरिएशंस हमने पढ़े थे इन टर्म्स ऑफ फूड हैबिट्स, बिलीफ सिस्टम, ड्रेस पैटर्न, पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी डिस्कस हुए थे डिफरेंट सोशल साइंस सब्जेक्ट्स। बट अ मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग जो है अगर हमें करनी है ह्यूमन बीइंग का, तो वो क्या रिक्वायर करता है, वो रिक्वायर करता है कि हमें एनालिसिस भी करनी पड़ेगी दोनों बायोलॉजिकल एंड सोशल पेक्युलरिटीज की इंटीग्रेटेड वे में। सो एंथ्रोपोलॉजी लुक्स एट दीज एस्पेक्ट्स विद अ यूनिक एंड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। नॉलेज ऑफ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगी कैसे जो है एंथ्रोपोलॉजी डिफर करती है दूसरे रिलेटेड सब्जेक्ट से और डिसिप्लिन से। सो etymology and definition of anthropology. Etymological meaning of different subject is given in the box. ये शो करता है कि कैसे ये subjects derive करते हैं अपनी नाम by combining two Greek words. हर एक जो words है उसका particular meaning होता है and combination जो है इन words के render appropriate meaning to the subjects. So etymology word anthropology ड्राइव किया जाता है, ड्राइव किया हुआ है दो ग्रीक वर्ड से, एंथ्रोपोस मीनिंग ह्यूमन एंड लोगोस मीनिंग स्टडी और साइंस. सो दिस एंथ्रोपोलॉजी कैन बी अंडरस्टूड एज द स्टडी और साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. साइकोलॉजी साइको प्लस लोगोस, सोशियोलॉजी सोशियस प्लस लोगोस, इकोलॉजी इकोस प्लस लोगोस, जियोलॉजी जियो प्लस लोगोस, एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोस प्लस लोगोस. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एग्जामिन करना है सम ऑफ द पॉपुलर डेफिनेशन गिवन बाय द रिनोन्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैन, ये किसने कहा है, ए.एल. क्रोबर ने. एंथ्रोपोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ मैन इन हिज वर्क. सो आउट ऑफ ऑल दीज साइंसेस जो स्टडी करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स इसके मैन के, एंथ्रोपोलॉजी इज द वन विच कम नियरेस्ट टू द टोटल स्टडी ऑफ मैन. सो ऑल्सो एग्जामिन करने की जरूरत है फॉलोइंग डेफिनेशन को. सो एंथ्रोपोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है फिजिकल, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग सिंस देयर अपीयरेंस ऑन अर्थ. ये बोलते हैं एम जैकब एंड बी स्टर्न का ये कहना है. तो एंथ्रोपोलॉजी डिफरेंट है दूसरे सब्जेक्ट से, बहुत सारी हमें हेल्प करेगा रियलाइज करने में इसकी यूनिकनेस को. एनालाइज करना है आपको अबाउट डेफिनेशन को और आइडेंटिफाई करना है कि कैसे एंथ्रोपोलॉजी